Hello aspirants, in this video I am going to discuss about the next 1 month strategy for your 2023 UPSC CSC attempt. See, December 31st तक क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है, क्यों कवर करना है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करता हूं. वॉच इट टिल द एंड. So first thing is what to do in these next 35 days or the next month till December 31st. See, first thing you must focus is optional subject. Yes, optional must be done in these 30 days. Like if you are like first attempt, in a first attempt you must be having classes, right? Like optional classes or GS classes or CSAT classes, etc. So in next 30 days, apart from these classes, you must be getting like 6 to 7 hours a day of study time. So in these 6 to 7 hours, try to focus on optional and ethics for at least 70 to 80% of time. Yes, see, because for GS and all you can focus GS, prelim specific, etc. from January, but now is the time you must focus on your optional and ethics. See, it's like 45 minutes newspaper and सीधा directly like revise what is being taught in the class notes revise करो, then directly move to optional and ethics. ठीक है, इस next December 31st तक focus on optional and ethics. ये दोनों पे फोकस करना है. like 70 to 80% of your time has to be on these two only. ठीक है, अब why you must focus, like why optional and ethics for next 1 month, ये डिस्कस करते हैं कि करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेलिंग यू टू फोकस ऑन ऑप्शनल एंड एथिक्स. सिर्फ व्हाट नहीं है, हाउ व्हाई में भी फोकस करना है. तो चलो, फर्स्ट थिंग इज, सी, फ्रॉम जनवरी you are going to be have a prelim centric preparation. देखो, prelims पे फोकस करने वाला है जनवरी से, बिकॉज 5 महीने your prelims is on May 27th. so since January से you will be focusing on prelims, you will be slowly moving to prelims. And second thing is, see, already many aspirants are messaging me on Twitter, even on my YouTube videos also, कि sir, I want to start prelims preparation, like complete prelims preparation from December onwards, like 6 months for complete prelims. But what I am requesting them is कि focus on optional and ethics for the next 30 to 35 days, and from January onwards you can completely go to prelims mode. So see, I understand your urge. Even my first attempt I was also like this. We are scared of prelims कि यार prelims कैसे होगा, टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहा है एंड ऑल, रिवीजन नहीं हो पा रहा है. लाइक ऑप्शनल तो एक बार prelims हो जाए तब देखेंगे, prelims भी नहीं होगा तो ऑप्शनल पढ़ के क्या करेंगे एंड ऑल these doubts, and all these doubts are valid. But trust me, 5 months is a very good time to go on a prelims mode. ठीक है, Jan से you can shift to prelims mode, but till December 31st focus on optional and ethics. ठीक है, then आता है कि भाई अभी optional और ethics क्यों करना है, because next 3-4 months before prelims, like come Feb, March, April, May, trust me, you won't be touching your optional books, ethics books, in fact GS mains also. Trust me. See, 3 महीने 4 महीने पहले prelims का
यही होता है, बस भगवान प्रीलिम्स करा दे, मेंस कुछ नहीं है, रैंक नहीं चाहिए, बस प्रीलिम्स हो जाए, यही काफी बात है। इस मोड पे आता है, ट्रस्ट मी यू वोंट गेट टाइम। सी लोग सी सैट भी प्रिपेयर नहीं कर पाता है, बोलेंगे अरे यार 66 तो हो जाएगा, वो इमेंस प्रेशर में होंगे आप इस 3-4 महीने में, बोथ फर्स्ट अटेम्प्ट एस्पिरेंट्स भी एंड सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट एस्पिरेंट्स भी। इनफैक्ट मान ले मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया हूं 4 बार, इवन 3 months बिफोर प्रीलिम्स आई वुड बी फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स, not on mains, not on optional, not on interview etc. My focus would be on prelims. So अब जब इस 4 महीने में you won't be able to touch optional, like optional classes भी है तो you would request teachers की जल्दी खत्म करो या तो prelims के बाद ले लो and all. So अभी टाइम है optional करने के लिए, बाद में नहीं मिलेगा टाइम। And next is, see, prelims is getting tougher year by year, so you must give 5 months or at least 4 months of dedicated prelims preparation. अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो, सेकेंड अटेम्प्ट भी हो, लाइक प्रीलिम्स हुआ है नहीं हुआ है डजेंट मैटर, यू मस्ट बी फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स फॉर एटलीस्ट 4 months। ठीक है, तो अभी फोकस करना है ऑप्शनल एंड एथिक्स पे। देन इज CSAT द न्यू एनिमी? भाई you would be preparing for CSAT also, so in like 4 months prior to prelims what would you be doing? You would be doing prelims के लिए सारे बुक्स रिवीजन करोगे, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, CSAT का क्लासेस, CSAT का प्रिपरेशन, CSAT का टेस्ट एंड ऑल। सो उस 4 महीने एटलीस्ट 4 months or 5 months you won't be able to get time to do optional and ethics, so you would be busy with prelims and CSAT preparation. So abhi till December at max Jan is the time you need to focus on optional and ethics. ठीक है, अब आता है कि ठीक है सर ऑप्शनल और एथिक्स करेंगे, अब बताओ क्या करना है, कैसे करना है, हाउ आई नीड टू प्रोसीड with my optional and ethics for the next 35 days. The first thing is, if you are taking classes, you must take classes. Optional classes important है, you are already paid fees, attend classes and understand what teacher is teaching etc. वो करोगे। then class notes revision करोगे, not just अभी जो classes चल रहा है, like if you are taking classes, optional classes since मान ले कि past 2 months और 3 months, और हो सकता है कि भाई अभी तक आपका ऑप्शनल क्लासेस खत्म भी हुआ, सो अगेन पिक द नोट्स फ्रॉम क्लास 1 एंड रिवाइज द क्लास नोट्स टॉपिक वाइज, सिलेबस में एक एक टॉपिक उठाओ, क्लास नोट्स रिवीजन करो एंड रीड स्टैंडर्ड बुक्स, लाइक जो भी हो सकता है कि डोंट कीप मल्टीपल रिसोर्सेस, जो भी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक्स है या मटेरियल है, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक्स एंड मटेरियल, मेक श्योर यू रिवाइज देम और रीड देम, कि एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया तो पता चल जाए। इफ नॉट कि भाई बार बार पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, रट रहे हो, एटलीस्ट इस 30 डेज में 1 रीडिंग यू मस्ट बी डूइंग, लाइक सेलेक्ट 3-4 बुक्स, ज्यादा नहीं करना है, एंड नो नीड टू रीड ऑल द बुक, लाइक बुक फ्रॉम कवर टू कवर। जो यूपीएससी रिलेवेंट सिलेबस है, यूपीएससी रिलेवेंट टॉपिक्स है, उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ो, so that you understand what is being taught in class, get clarity and able to connect them with class notes etc. then आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो हर टॉपिक का, जैसे क्लास नोट्स है, like see whether class notes is able to address previous year questions, like standard books भी पढ़ोगे तो have previous year questions in your mind, so previous year questions पे कमांड करो। then read toppers answer copies, तो उससे क्या होता है, how to write answers
है वो आइडिया पता चल जाएगा। देन स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, लाइक most of you must have started. Even if you haven't started, at least write like 3 to 4 answers per day, because see जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या टॉपर्स का आंसर कॉपी से टॉपर्स जिस पे क्वेश्चंस लिखा है, रीड देम एंड यू आल्सो ट्राई टू राइट आंसर्स ऑन दोस क्वेश्चंस और टॉपिक्स फ्रॉम दोस क्वेश्चंस। उससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट प्रीलिम से जाने से पहले ये तो कॉन्फिडेंस आएगा कि ओके, आई विल क्लियर प्रीलिम्स दिस टाइम, आई हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज और अप्रोच रिगार्डिंग मेंस, सो वंस आई एम डन विथ प्रीलिम्स आई विल go for mains preparation. It would be easy for you to go for mains preparation. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार चलो प्रीलिम्स हो गया अब ऑप्शनल का क्या करूं, ऑप्शनल तो हुआ ही नहीं। सो बट उधर क्या हो जाएगा, यू वुड बी गिविंग मेंस बट यू वुड बी स्कोरिंग लेस मार्क्स इन ऑप्शनल, एथिक्स एक्सेट्रा, तो फिर क्या फायदा। अपना एम ये नहीं है ना प्रीलिम्स क्लियर करना है, आवर एम इज टू क्लियर द एग्जाम इन वन गो। सो इसीलिए यूज द नेक्स्ट 30 months टू इंप्रूव योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑलरेडी मान ले कि हो सकता है कि यू आर गिविंग सेकेंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट, लाइक यू हैड डन कोचिंग, रोट फ्यू टेस्ट, नाउ इज अ मंथ यू मस्ट कंसोलिडेट योर ऑप्शनल प्रिपरेशन, नोट्स वगैरह सब इकट्ठा करो, टेस्ट वगैरह है तो कंप्लीट करो। सो गेट कमांड ओवर ऑप्शनल। अगर कमांड नहीं है, यू आर इन ए फर्स्ट अटेम्प्ट, एटलीस्ट बिकम अवेयर ऑफ द ऑप्शनल। So that is for optional. Follow these tips. See, इसमें इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड रीडिंग टॉपर्स आंसर्स। ये हेल्प करेगी आपका आंसर राइटिंग में और प्रिपरेशन में भी, एंटायर प्रिपरेशन में एक समझदारी बनाएगी आपको रिगार्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, देन आता है एथिक्स। भाई एथिक्स के लिए क्या करना है, देखो एथिक्स के लिए क्या है, पिकअप लाइक 4 to 5 days, 4 to 5 days एथिक्स का लगा लो एंड रीड डीके बालाजी और लेक्सिकन और एनी अदर बुक, लाइक हो सकता है कि क्लास नोट्स, ठीक है। एंड नो नीड टू रीड मोर देन वन बुक, रीड ओनली वन बुक, या तो डीके बालाजी पढ़ो या तो लेक्सिकन पढ़ो या लाइक एथिक्स डिकोडेड, कोई भी बुक हो, जस्ट वन बुक, सिर्फ एक ही बुक पढ़ना है, पढ़ो। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अतुल गर्ग सर का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन बुक है, इन विच ईयर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ, उसका आंसर दिया हुआ, केस स्टडी दिया हुआ, उसका आंसर दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन। सो रीड दिस बुक। उससे क्या पता चलेगा कि आपको यह पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है एंड हाउ यू नीड टू आंसर, लाइक हाउ यू नीड टू डिफाइन कीवर्ड्स, हाउ यू नीड टू कनेक्ट, हाउ यू नीड टू राइट एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा, वो पता चल जाएगा। सो यू कैन रीड बाय दिस बुक फ्रॉम द मार्केट एंड रीड। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार पता चल जाएगा कि हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, हाउ यू नीड टू अप्रोच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन आपका क्लैरिटी रिगार्डिंग सब्जेक्ट कर देती है। देन आता है रीड टॉपर का आंसर कॉपीज। सी ये सब आपको एक्चुअली 4-5 दिन में, सी डीके बालाजी और लेक्सिकन, जस्ट गो थ्रू दैट बुक, डोंट ट्राई टू रिमेंबर और मेमोराइज थिंग्स। अभी पढ़ोगे, प्रीलिम्स पढ़ोगे, भूल जाओगे। सो दिस इज यू मस्ट रीड टू एज ए न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हो या नॉवेल जैसे पढ़ते हो, तो ऐसा पढ़ना है कि लाइक 1-2-3 दिन में पूरा बुक कंप्लीट कर रहे हो। सो इट्स लाइक टू गेट ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। देन रीड टॉपर्स का आंसर कॉपीज, लाइक श्रुति शर्मा 2021 का टॉपर है, यू कैन रीड हर आंसर्स, शी गॉट वेरी गुड स्कोर इन एथिक्स। और सरतक अग्रवाल का 2020 का लाइक रैंक 17 है, इनका भी आंसर कॉपीज, लाइक दे रोट आंसर्स टेस्ट इन विजन आईएएस और फोरम आईएएस, उनका कॉपीज डाउनलोड करो और आंसर्स पढ़ो। उससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ दे आर राइटिंग, हाउ यू कैन अडॉप्ट टू देयर राइटिंग स्किल्स, हाउ दे आर यूजिंग एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा। तो आपको आंसर राइटिंग पे एक क्लैरिटी मिल जाएगी। देन राइट केस स्टडीज एंड आंसर्स। जो
जिस टेस्ट का ये लोग लिखा है उस टेस्ट का आप लिख सकते हो, कंपेयर योर आंसर्स विद देम, बाय दैट यू वुड लर्न हाउ टू राइट आंसर्स एंड ऑल, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लिख दो एंड कंपेयर विथ दिस बुक बाय आंसर योर आंसर्स. सो दिस entire thing is you get like before going to prelims mode, become मेंस रेडी. ठीक है, मेंस का एक बार करके साइड में रखो, लाइक देन 4 months 5 months you would be giving for prelims, then after clearing prelims you go for optional, ethics etc. तो ऐसा नहीं लगेगा कि you are completely new to optional और ethics, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर 2 महीने में आप कवर नहीं कर पाओगे. सो अभी 30 to 35 days फोकस ऑन ऑप्शनल एंड एथिक्स. बाकी जीएस पेपर्स वगैरह, सी इज लाइक इफ यू आर गिविंग सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, लाइक प्रीलिम्स नहीं हुआ फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में, एंड यू आर ऑलमोस्ट डन ऑप्शनल और एथिक्स, देन यू कैन डू जीएस मेंस. अदरवाइज आपका ऑप्शनल और एथिक्स ही हैप्पैजार्ड मैनर है. तो दिस 30 days फोकस ऑन ऑप्शनल एंड एथिक्स. ठीक है, देन विथ न्यू ईयर यू कैन स्टार्ट फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. डोंट वरी, प्रीलिम्स के लिए भी 5 months is a very good time. Many of you are worried. 5 months is a very good time. You can easily prepare for prelims in 5 months. CSAT भी, टेस्ट भी, सब कुछ. I would be making videos regarding prelims preparation as the time arrives. So follow my videos. If you have any doubts, you can watch my video on ethics preparation, optional preparation, etc. So that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. All the best for your preparation. Next 1 month, optional and ethics, plan, execute, then move on to the prelims preparation. Thank you very much.